My name is Faraz Iqbal Memon, and I am going to present and discuss few slides on the topic of COVID-19 versus cybersecurity. And I am basically a PhD scholar. Along with me, Mr. Imran and Mehboob Saab, who are the MS fellows, contributed a lot while collecting the informative data during creation of this presentation. So let's start with COVID-19 impact on cybersecurity. As we all know that due to COVID-19 pandemic, the dynamics of world changed. COVID-19 enforced organizations and individuals to embrace new practices and routine activities. While the world is focusing on health and economic threats posed by COVID-19, cyber criminals around the world undoubtedly are capitalizing on the crisis. Results: cybersecurity, which is the core of the information technology, also adopted new SOPs after being victimized by means of rapid growth in cyber attacks. During COVID-19 pandemic, there have been an increase in cybersecurity attacks by nearly 5 times. As the graph shows that 48% of the people agree that they had provided some data to online sites during COVID-19 pandemic, whereas 13.40% of the people didn't provide any data to online sites. Ratio of the uncertain people is around 40.20%. Some agree that their data and information was either stolen or otherwise attacked by cyber criminals during COVID-19 pandemic. COVID-19 से रिलेटेड कुछ अटैक्स को हम यहाँ पे गो थ्रू कर लेते हैं. हमने ये देखा कि ड्यूरिंग COVID-19 जो स्पाइक हमें नजर आता है वो फिशिंग अटैक्स में, मेल स्पैम में और रैंसमवेयर अटैक्स में आता है, जहाँ पे अटैकर्स ने COVID-19 को एज ए टूल यूज किया. ना सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बल्कि इंडिविजुअल्स भी टारगेट हुए. COVID-19 से रिलेटेड एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद रैंसमवेयर जो डिस्गाइज एज ए लेजिटिमेट एप्लीकेशन होता था एक्टिवेट हो जाता था. ऐसी फिशिंग ईमेल सर्कुलेट हुई जिनके साथ अटैचमेंट में मिलिशियस माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट भेजा जाता था. नतीजतन मिलिशियस कोड टारगेट मशीन पे एग्जीक्यूट हो जाता था. फिशिंग ईमेल की एक और किस्म में मैक्रो एनेबल्ड माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट भेजा जाता जो हेल्थ इंफॉर्मेशन से मुतालिक होता था, जो ट्रिगर होने के बाद इमोटेड और ट्रिकपॉट मेलवेयर को टारगेट मशीन पे डाउनलोड कर देता था. फिशिंग ईमेल की एक और किस्म में यूजर क्रेडेंशियल्स को स्टील किया गया थ्रू वेबसाइट. यहाँ कोरोना वायरस का हम एक केयर फिश एग्जाम्पल देख सकते हैं, जिसमें ईमेल के अंदर डॉक्टर कार्लोस जो है एक फ्री हेल्थ गाइडलाइन सेंड कर रहे हैं. सिमिलरली फेक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फिश में हम देख सकते हैं कि स्टेट्स दिए जा रहे हैं कि 75,000 इन्फेक्टेड कोविड केसेस हैं. Malicious text messages, एक और fraudulent act during COVID-19. इसमें हम देख सकते हैं कि कनाडा में अटैकर्स ने impersonated किया था पॉपुलर रिवार्ड प्रोग्राम को यूज बाय सुपरमार्केट्स, फार्मेसीज एंड मोर. एक और अटैक वेक्टर हमें नजर आया during COVID-19, that is malicious infection maps. And what happens? Attackers have created hundreds of fake websites providing misleading information, stats, or interactive maps regarding COVID-19. These sites attempt to find vulnerabilities in the web browsers of the users. They can then use these vulnerabilities to install malicious software designed to steal personal or organizational information, or to encrypt your data or device and hold them for ransom. मिलिशियस मोबाइल ऐप्स. अटैकर्स की तरफ से ये मिलिशियस एंड्रॉयड ऐप मोबाइल्स के लिए फ्रीली डाउनलोड अवेलेबल हो गई मार्केट में. ये एप्लीकेशंस फॉल्सली told the users that they could scan to find out the infection rates in their geographical area. In reality, once the app is installed on a machine, on a mobile, the app gets the access to log the user screen of that mobile, which brings the mobile a victim of ransomware. Stolen email addresses and passwords. 21 अप्रैल 2020 में एक अटैक रिपोर्ट हुआ अबाउट स्टोलन ईमेल एड्रेसेस एंड पासवर्ड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन जो अगेंस्ट कोविड फाइट कर रही थी. उनमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ मेंशन हैं, जैसे WHO, वर्ल्ड बैंक एंड सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सेंटर US. रिस्पॉन्स टू कोविड अटैक्स फॉर रिमोट वर्कर्स. यहाँ कुछ की स्टेप्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस को और इंडिविजुअल्स को लेने चाहिए इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिस्क, स्पेशली व्हाइल वर्किंग रिमोटली. नंबर 1 है रेज अवेयरनेस अमंग्स योर टीम अगेंस्ट कोविड-19 साइबर थ्रेट्स अटैक्स. पासवर्ड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. प्रिफर्ड किया जाए कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज हो फॉर रिमोट एक्सेस अकाउंट्स. प्रॉपर SOP डिफाइंड हो फॉर रिमोट वर्कर्स रिलेटेड टू द यूज ऑफ सिक्योर रिमोट वर्किंग सॉल्यूशंस. इंश्योर किए जाए कि जो ऑफिशियल लैपटॉप्स हैं वो अप टू डेट हों, OS पैचेस हों, VPNs उसमें हों और इंटरनेट सिक्योरिटी आर्सेनल या बंडल हो उस पे.
अवॉइड किया जाए पर्सनल कंप्यूटर्स को ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशंस शुड टेक प्रोएक्टिव स्टेप्स बाय एडवाइजिंग देयर स्टाफ एंड कस्टमर्स टू बी मोर विजिलेंट एंड कॉशियस, स्पेशली कोई लिंक ओपन करना हो, कोई ईमेल या डॉक्यूमेंट जो रिलेटेड हो कोविड-19 से, उसको हैंडल करने के दौरान। ऑर्गेनाइजेशंस शुड इंश्योर दैट देयर डिटेक्शन एंड alerting competencies are functional while keeping an eye on the impact of having many remote workers. These are few of the references our group reviewed while preparing this presentation. I am thankful to my group members Imran and Mehboob for their valuable participation. Also thanks to Sir Mehdi to opportunate us for such fantastic experience. Thank you.